اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ جب حضرت عبداللہ اپنے گھر آ گئے، اب وہاب بن عبد مناف جب اپنے گھر پہ پہنچے اور اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، کرنے کے بعد میں کہتے ہیں اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مشورے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ خاندان کے لوگ بولے کیا مشورہ ہے؟ بولے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے جوان ہیں اور میری بیٹی آمنہ جوان ہے، میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ کا نکاح میری بیٹی آمنہ کے ساتھ ہو جائے۔ قبیلے کے لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے، بولے کیسی بات کرتا ہے، تیرے پاس چند بکریاں اور وہ بکریوں کے ریوڑ کا مالک، تو ایک عام آدمی اور وہ سردار مکہ کا بیٹا، اور وہ عبد المطلب جو سردار مکہ ہیں، سردار قریش ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، وہ ان کا بیٹا، تو معمولی آدمی، تیرے گھر سے وہ رشتہ جوڑیں گے؟ عبد المطلب عبد المطلب کے لیے بڑے بڑے رئیسوں کے گھروں کے رشتے تیار رہتے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ کہا لوگوں اگرچہ میں غریب ہوں، اے لوگوں اگرچہ میں پیسے والا نہیں ہوں، لیکن قیامت کے دن وہ عبد المطلب کے امیر بیٹے کا ہاتھ مانگنے والوں میں مجھ جیسے غریب کا بھی تو نام آ جائے گا۔ جب اتنا کہا لوگوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، کہا میں جاؤں گا ان کے دروازے پر، مجھے معلوم ہے عبد المطلب کا گھر وہ گھر ہے جہاں سے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہے، جہاں ہر غریب کی مدد کی جاتی ہے۔ عبد المطلب کے دروازے پر آ گئے وہاب بن عبد مناف، اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، عبد المطلب باہر نکل کے آئے اور قدموں پہ گر کر کے کہتے ہیں عبد المطلب میں آج تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ فرمایا اٹھو، مانگنے والوں کو ہم سینے سے لگاتے ہیں اور بھیک ہم قدموں میں گرا کے نہیں دیتے ہیں بلکہ سینے سے لگا کر کے دیتے ہیں، بتا کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ جو مانگے گا میں دوں گا۔ جب اتنا کہا تو وہاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت وہاب بولے کہ میں آج آپ سے دولت کا سوال کرنے نہیں آیا ہوں، کوئی پراپرٹی کا سوال کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگنے، اپنی بیٹی کے لیے میں آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد عبد المطلب بولے ذرا یہ تو بتا تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب جو سردار مکہ ہیں، عبد المطلب جو سردار قریش ہیں، عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، جو ہزاروں بکریوں کے مالک ہیں، ذرا سنو تو صحیح۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت وہاب سے یہ نہیں کہا تیری پراپرٹی کتنی ہے، یہ نہیں پوچھا تیری زمین کتنی ہے، یہ نہیں پوچھا تیری جائیداد کتنی ہے، فرمایا پتا تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہا میری بیٹی کا نام آمنہ ہے۔ جب اتنا سنا حضرت عبد المطلب نام پہ غور کرنے لگے۔ آمنہ امن سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں چین دینے والی، جس کے معنی آتے ہیں راحت دینے والی، جس کے معنی آتے ہیں آرام دینے والی۔ سوچنے لگے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور بہو کا نام آمنہ ہے، ان سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ دنیا میں امن دیتا ہوا آئے گا، وہ دنیا میں آرام دیتا ہوا آئے گا، وہ دنیا کو راحت پہنچاتا ہوا آئے گا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ارے وہاب تم میرے دروازے پر آ گئے، یہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ چند دنوں میں میں خود تمہارے گھر پر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر کے آنے والا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں خود تیرے گھر رشتہ لے کر کے آنے والا تھا، یہ مکے میں شادی ہونے جا رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب جو اتنے بڑے گھرانے کے مالک ہیں، عبد المطلب جن کے اندر کئی قبیلے آتے ہیں، وہ حضرت عبد المطلب جن کی پراپرٹی بہت زیادہ ہے، لیکن وہاب جو بہت غریب ہیں، ان سے یہ نہیں کہتے کہ تو اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے گا، یہ نہیں کہتے ہیں کہ تیری بیٹی میرے گھر پر آئے گی تو کیا کیا لے کر کے آئے گی۔ آج اپنے گھروں کی شادیوں کا حال دیکھ لو، آج اپنے گھروں کا جائزہ لے لو، تمہارے گھروں میں بھی تو شادیاں ہوتی ہیں، ایک شادی مکے میں ہونے جا رہی ہے، ایک شادی مکے میں ہونے جا رہی ہے، اور آج اپنے گھروں کی شادیوں کا حال دیکھ لو، تباہ کر دیا معاشرے کو تمہارے یہاں کے شادیوں کے رسم و رواجوں نے۔ آج نہ جانے کتنے مسلمان گھروں کی بہن بیٹیاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا کر کے رہ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ اس میں ہماری کمی ہے۔ آج شادی کے بڑھتے اخراجات نے معاشرے کو اس دہلیز پہ لے جا کر کے رکھ دیا ہے، نہ جانے کتنی بہنوں کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، نہ جانے کتنی بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتر آئی۔ ذرا سوچتے نہیں تمہارے یہاں
की शादियों का हाल क्या है, तुम्हारे यहाँ की शादियों का क्या हाल है। अगर किसी गरीब की 3-4 बेटी होती हैं, पूरी पूरी रात उसको नींद नहीं आती, यही सोचता रहता है कि कहां से मैं अपनी बेटियों के लिए इतने जहेज का इंतजाम करूं, कहां से मैं अपनी बेटियों के लिए इतना जहेज लेकर के आऊं। एक बेटी की शादी करने में इतना कर्ज उस गरीब को हो जाता है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, और बेटियां घर में उनकी उम्र बढ़ती रहती है, 30-30 साल 35-35 साल की उम्र हो जाती है, और वो यही सोचती रहती है काश मेरे बाप के पास में पैसा होता, काश मेरे बाप के पास में दौलत होती, काश मेरे बाप के पास में इतना रुपया होता तो मेरा बाप मेरे भी हाथ पीले कर देता। आज ऐसे ऐसे गलत रस्मों रिवाज चल गए। अभी हमारे तरफ एक मंगनी हुई थी, उस मंगनी के अंदर बुलेट दी गई थी लड़के के बहनोई को। जरा सोचो तो सही बुलेट की कीमत कितनी होती है। हमारे तरफ 2,80,000 से ऊपर तकरीबन 3 लाख के करीब उसकी कीमत है। उस बुलेट को बहनोई को जब बुलेट दी गई है तो लड़के के बाप को क्या दिया गया होगा, लड़के की माँ को क्या क्या दिया गया होगा, लड़के की बहनों को क्या क्या दिया गया होगा, क्योंकि उमूमन बहनोइयों को और भाइयों को ज्यादा कुछ नहीं दिया जाता है। थोड़ा सोचने की बात है ये बात, और इतनी नुमाइश की गई उस मंगनी की, गली गली कूचो कूचो में उसका प्रचार हो रहा था कि इतना जहेज इतना सामान सिर्फ मंगनी में दिया है। जब वो मंगनी कर करके अपने घर पर आए तो मोहल्ले के लोग कह रहे थे अरे जब मंगनी में इसने इतना दिया है तो शादी में कितना देगा। उसी में पड़ोस में अगर कोई गरीब बेटी होगी, उसने सुना होगा तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। उस बेटी ने जब ये सुना होगा तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। आज मेरे रब ने तुझे अमीर कर दिया, आज मेरे रब ने तुझे पैसा दे दिया, आज मेरे रब ने तुझे दौलत दे दी, आज मेरे रब ने तुझे प्रॉपर्टी दे दी, तू उस प्रॉपर्टी की नुमाइश कर रहा है। तूने गरीबों का ख्याल नहीं किया, तूने उन फकीरों का ख्याल नहीं किया जिनके घर में जवान बेटियां बैठी हुई हैं। रक्षा चलाने वाला गरीब, शाम मजदूरी करने वाला गरीब, पत्थर उठाने वाला गरीब, ईंटें उठाने वाला गरीब, जिसकी 300-400 रुपए की मजदूरी है, वो गरीब जब अपने घर में आता है 200-250 रुपए घर के खर्च में खर्च हो जाते हैं, 200 रुपए बचा करके रखता है। कहां से इतनी प्रॉपर्टी जमा करेगा, कहां से इतना पैसा जमा करेगा। जरा सोचो तो सही उन गरीबों का क्या हाल होगा। जब मोहल्ले पड़ोस में उस मंगनी का जिक्र किया गया होता, उन गरीबों की बेटियों पे कैसी बीत रही होगी। काश मेरे मौला तूने मेरे बाप को भी दौलत दी होती, मेरे बाप को भी गरीब ना बनाया होता, तो आज मेरा बाप भी मेरे हाथ पीले कर देता। तुम्हारे यहाँ की शादियों में कैसे रस्म रिवाज आज पैदा हो गए। इस्लाम में तो सादा निकाह का रिवाज था। आज आओ अपने जहन को जरा करीब करो, आज हमारा मुआशरा कहाँ पर पहुंच गया, आज हमारी सोसाइटी कहाँ पर पहुंच गई। आज तबाह कर दिया इस मुआशरे को इस रस्म रिवाज ने। ऐसे ऐसे मुआशरे में चीजें जन्म लेने लगी। उस गरीब ने अगर किसी से कह दिया मेरी बेटी का रिश्ता लगाओ, तो जो बीच वाला होता है वो कभी महीनों रिश्ते को चलाता रहता है, कभी लड़के के यहाँ खाता है, कभी लड़की के यहाँ पर खाता है, और वो गरीब 300 रुपए की मजदूरी करने वाला ला करके उसको अच्छा खिलाता है ताकि मेरी बेटी का रिश्ता कराएगा। और उसके महीनों रिश्ता चलने के बाद में कहता है कि लड़के का बाप देखने के लिए आएगा या लड़के की माँ देखने के लिए आएगी। ये सारी बातें आज इस दौर में चल रही हैं। कभी खबर आती है अभी बहन और बहनोई देखने के लिए रह गए हैं, वो भी देखने के लिए आएंगे। कभी खबर आती है अभी लड़के का भाई रह गया है, वो भी देखना चाहता है। उसके बाद महीनों रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल रिश्ते चलते हैं। उसके बाद में क्या नतीजा निकलता है, यही नतीजा निकलता है कि आकर के कहता है कि लड़के के भाई को लड़की पसंद नहीं आई या लड़के के बहनोई को लड़की पसंद नहीं आई। अरे जालिम, जब रिश्ता करना ही नहीं था क्यों उस गरीब के घर पर गया खाने के लिए। जब तुझे उस घर से रिश्ता जोड़ना ही नहीं था क्यों तू उसके घर पर जाकर के कह रहा था कि मैं तेरी बेटी का रिश्ता करा दूंगा। अरे नादान, क्या इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। मेरा रब सब जानता है। मेरे रब ने आज तुझे अमीर बना दिया है। हमने उन लोगों को भी देखा है जो कभी कारों से घूम रहे थे, आज उनके पैरों में चप्पल नसीब नहीं है। और हमने उन गरीबों को भी देखा है जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती थी, आज बिल्डिंगों में महलों में फख्र कर रहे हैं। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दौलत पर और सेहत पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी आने में वक्त नहीं लगता और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता। ये क्या है हजरत गिरामी, अगर अल्लाह ताला ने इस इंसान को मालदार बनाया
تھا, इसको चाहिए था कि गरीबों की गरीबी के लिहाज रखता, गरीबों की मदद करता, गरीबों को अपने सीने से लगा के कहता, अरे नादान, अगर किसी का रिश्ता जुड़ भी जाता है तो अगर वो घर पर आ जाए उसका समधी, तो पूछता है समधी साहब जरा ये बताओ कि तुम बारात कितनी लेकर के आओगे, तो कहता है बारात क्या, ऐसी 500-600 लोग आ जाएंगे तेरे घर पर बारात में. अल्लाह अकबर, खुद तो 100 लोगों के कार्ड छपाए दावत देने के लिए, और जब बारात लेके जा रहा है तो 500 और 600 की बारात लेकर के जा रहा है. मजदूरी करने वाला गरीब कहां कहां से ला करके जोड़ करके खाने का इंतजाम करता है, कहां कहां से जोड़ करके अपनी बेटी को जहेज देता है. अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने अपना सब कुछ दे दिया. आज वही बेटी जब अपने ससुराल में आती है तो उसे जहेज का ताना दिया जाता है, उसे जहेज के ताने दे करके आज भी मुआशरे के अंदर तंग किया जाता है. आओ जरा देखो अपने यहाँ की शादियां देखो, और एक शादी मक्के में होने जा रही है. हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत वहाब से कहते हैं कि तू अपनी सिर्फ बेटी का नाम बता दे, मुझे तेरी दौलत से मतलब नहीं, मुझे तेरी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, मुझे तेरे खानदान से मतलब नहीं, सिर्फ तू अपनी बेटी का नाम बता. हजरत वहाब बोले मेरी बेटी का नाम आमिना है. अब्दुल मुत्तलिब बोले मुझे रिश्ता मंजूर है. ये नहीं पूछा जहेज में क्या दोगे, ये नहीं पूछा तेरी बेटी मेरे घर क्या लेकर के आएगी. बोले बारात कब लाओगे, कहा जा तीसरे दिन तेरे घर पर बारात आएगी. कहा लोग कितने आएंगे, कहा 11 लोगों से ज्यादा लोग तेरे घर पे बारात में नहीं आएंगे. अल्लाह अकबर, ये 500-500 की बारातें ले जाने वालों, ये 1,000 की बारातें ले जाने वालों, ये 600 की बारातें ले जाने वालों, जरा सीखो मक्के की शादी से कैसा निकाह हो रहा है मक्के में, और आज अपने यहाँ के निकाहों को देख लो. यही वजह है कि बहू जो घर में आती है 1 महीना नहीं गुजरता अपना चूल्हा अलग कर लेती है. तेरे नादान, तूने उसको बहू समझाई कब था, तूने उसको अपनी बेटी समझाई कब था, तूने तो अपने बेटे की बोली लगवाई थी, तूने तो अपने बेटे को बेचा था, तेरे बेटे को खरीदा है उसने, कैसे तुझे तेरा बेटा तेरे काम आ सकता है. और वो लड़की जो तेरे घर में बहू बन करके आई है, उसके बाप, उसने अपने बाप का रातों में रोना देखा है. जो तूने बीच वाला बिचपई बनाया था, उसने जाकर के कहा था कि उधर की खबर है कि उसके पड़ोस में जो शादी हुई है उसे फला गाड़ी मिली है, उससे छोटी गाड़ी नहीं होना चाहिए बल्कि बड़ी होना चाहिए. वो रातों में रक्षा चलाने वाला गरीब अपने बिस्तर पे आंसू बहाए हैं, रातों में मजदूरी करने वाले गरीब ने आंसू बहाए हैं. दोनों मियां बीवी बैठ के एक चारपाई पे रोए हैं. क्या बेटी ने ये रोना नहीं देखा होगा अपने बाप का, क्या बेटी ने अपने माँ के आंसू नहीं देखे होंगे. यही वजह है कि जब वो बेटी जब बहू बन करके आती है तो फिर वो बेटी बन के नहीं आती है, फिर वो बहू बन करके रहती है. 1 महीना नहीं गुजरता, जिस बेटे के लिए तूने जहेज की इतनी बड़ी चीजें मांगी, मैंने उन बुजुर्गों को भी देखा है जिन्होंने एसी फ्रिज और गाड़ियों का मुतालबा किया. उन लोगों को एक प्याले में पानी पीना तक नसीब नहीं होता है. सारा सामान बहू अपने कमरे में अलग रख लेती है, गाड़ी पर एक बार भी उस बुजुर्ग को बैठना नसीब नहीं हुआ, लेकिन वो मांगने के लिए बेटे के लिए अपना हलक फाड़ करके कह रहा था कि मुझे मेरे बेटे के लिए ये चाहिए. अरे नादान, तुझे अल्लाह ने दौलत दी थी, तू उस गरीब के घर पे जाता, उसका हाथ अपने हाथ में रख के कहता है ए मेरे भाई, अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, अल्लाह ने मुझे सरमाया दिया है, अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास है, बस एक बेटी की कमी है, मुझे मैं बेटी को लेने के लिए आया हूँ. ये बात जब वो लड़की सुनती तो फिर वो तेरे घर में तेरी बेटी बन करके आती, तुझे वो सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती. लेकिन तूने उस बेटी को खून के आंसू रुलाया, तूने उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया. ये हाल है आज हमारे यहाँ की शादियों का, ये हाल है आज हमारे यहाँ के ये शादियों के रस्म रिवाज का. कहां से कहां मुआशरा पहुंच गया, कहां से कहां हमारा हाल पहुंच गया. जरा अपने जहन को करीब तो करो. शादी मक्के में हो रही है और एक शादियां हमारे घरों में होती हैं, बैंड के साथ शादी जाती हैं, बाजे के साथ शादी जाती है. अरे नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो, आका फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी. निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा उससे वो मुझसे नहीं है, मतलब मेरे तरीके पे नहीं है. सुन्नत अदा करने जा रहे हो और काम शैतानी लेकर के जा रहे हो, कहां से उस शादी में बरकत होगी, कहां से वो निकाह के अंदर बरकतें होंगी. बच्चे भी पैदा होंगे तो वो भी दादा दादी का
कहना मानने वाले नहीं होंगे, क्योंकि तूने सुन्नत का मजाक उड़ाया, तूने सुन्नत की हंसी बनाई और उन सुन्नत के काम में गुनाह के कामों को लेकर के गया। जरा सोचो तो सही, हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने हैं, हजरत अब्दुल्ला की बारात चली है, न कोई बाजा न गाजा न कोई शोर हंगामा, सादा निकाह होता है हजरत अब्दुल्ला का। और हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो करके जब हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर पे आती है, कितने दिन रुकी? 3 दिन रुकी। और जब तीसरे दिन हजरत आमिना अपने वालिद हजरत वहाब बिन अब्दुल मुनाफ के घर पर पहुंची तो रोने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे। बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आ गए, बोले मेरी बेटी, मेरी लाल, क्या बात है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की परेशानी है? क्या तेरा शौहर अब्दुल्ला तुझे नहीं समझता? तब हजरत आमिना ने कहा, ऐ मेरे अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी नहीं है। कहा फिर बेटी रो क्यों रही हो? कहा अब्बा, अगर पूरे मक्के में सबसे ज्यादा सखी कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। पूरे मक्के में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। कहा बेटी फिर रो क्यों रही हो? कहा अब्बा, इससे पहले जब मैं आपके घर पर थी तब मैं बाहर निकला करती थी तो अलग बात होती थी, लेकिन आज जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के घर से आई हूँ और आपके घर तक जितने रास्ते में चीजें पड़ी हैं, अगर दरख्त पड़े तो उनसे मुझे सलाम की आवाज आई, पत्थर मिले तो पत्थर सलाम कर रहे थे। अरे अब्बा, मैं पहाड़ियों से गुजरी तो पहाड़ियों से सलाम की आवाज आ रही थी। अरे मेरे अब्बा, ये बात मैं समझ नहीं पाई। तब हजरत वहाब ने अपनी बेटी की पेशानी को चूम के कहा, मेरी बेटी, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज मेरी आरजू पूरी हो गई, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहा अब्बा कौन सी? कहा बेटी, मैं जानता हूं कि आखिरी पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जब वो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटी वो तेरे शिकमे मुबारक से तशरीफ लाए, इसलिए मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ कराया था। आज वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आखिरी पैगंबर का नूर अब तेरे रहमे मुबारक में है, अब वो तेरे शिकमे मुबारक में है, मैं कामयाब हो गया। इतना कहा, यही हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अब नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब से होता हुआ हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में आ जाता है। अब देखिए, जब नूरे मुस्तफा कई महीने हो गए तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, अब हमारा लाडला इस दुनिया में आने वाला है, बेटा तुम मुल्क के शाम चले जाओ और थोड़ा सामान खरीद लाओ और बेटा कुछ खाने पीने की चीजें ले आना। जब हमारा लाडला आएगा तो हम बेहतरीन इंतजाम करेंगे मक्के में दावत का, सबको खाना खिलाएंगे। हजरत अब्दुल्ला चले हैं काफिले के साथ में। जब वापस आ रहे थे तो मकामे यसरिफ, जिसको मदीना शरीफ कहते हैं, वहां हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। काफिले वाले चले आए, हजरत अब्दुल्ला मदीने शरीफ में रह जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो जाता है, हजरत अब्दुल्ला का मदीने में विसाल हो जाता है। अब अपने जहन को करीब करो पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, इधर हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में मेरे आका का नूर परवान चल रहा है, इधर हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो जाता है। हजरत आमिना ने, मेरे शौहर अभी तक नहीं आए, काफिले वाले आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, कहा बेटा जाओ जरा पता तो लगाओ कि अब्दुल्ला अभी तक क्यों नहीं आए। जब हारिस पहुंचे मदीने में तो उन्हें खबर मिली, उन्हें पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। जरा सोचो तो सही, उस औरत से पूछो जिसके शिकमे मुबारक में जिसके शिकमे मुबारक में मदीने वाले मुस्तफा का नूर परवान चल रहा है। जरा सोचो तो सही। और हजरत अब्दुल्ला का साया सर से उठ गया, कैसी बीतती होगी हजरत आमिना के दिल पर। हारिस आए मदीने से मक्का, पूछा अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटा क्या बात, अब्दुल्ला को लेकर नहीं आए? कहा अब्बा अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना तो अपना सर पकड़ करके बैठ गए, सोचने लगे किस मुंह से अपनी बहू से कहूंगा कि अब उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, अब कैसे अपनी बहू आमिना को बताऊंगा और वो इस हाल में है। हजरत अब्दुल्ला के विसाल की खबर अभी हजरत आमिना को नहीं दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला को जब कई दिन हो गए
حضرت آمنہ نے پھر پوچھا ابا عبداللہ کی کوئی خبر نہیں آئی؟ جب دیکھا کہ اب بتانا ہی پڑے گا تب عبد المطلب نے کہا بیٹی اب عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے، اب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ جب اتنا سنا حضرت آمنہ بیٹھ جاتی ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے مولا میرے شوہر کی امانت میرے شکم میں پروان چل رہی ہے اور تو نے میرا سہارا پہلے ہی اٹھا لیا۔ غیب سے آواز آتی ہے آمنہ پریشان مت ہو، ہم نے اس کے والد کا سایہ حکمت سے اٹھایا ہے۔ اے آمنہ اس کے والد کا سایہ ہماری حکمت سے اٹھا ہے۔ اے آمنہ جو تیرے شکم میں پروان چڑھ رہا ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خدا اس کا سہارا ہے اور وہ ساری خدائی کا سہارا ہے۔ بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رات و دن حضرت عبداللہ کو یاد کر کے روتی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ قسمت والی ہے وہ عورتیں جن کے شوہر حیات ہیں، جن کے شوہر زندہ ہیں۔ نہ جس عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے اس کی نہ میکے میں کوئی عزت ہوتی ہے نہ سسرال میں کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی اس سے پیار محبت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں گزارش کروں گا میری ماں بہنیں بھی اس پروگرام میں آئی ہیں، اپنے شوہروں کی عزت کرو، اپنے شوہروں کی توقیر کرو، اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اس عورت کو بھی دیکھا ہے جو کرسی پہ بیٹھ کر کے سونے کے کنگن پہن کر کے پورے گھر پہ حکم جماتی ہے، کیوں؟ کیونکہ شوہر کا سایہ سر پہ ہوتا ہے، اور جس دن شوہر کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے بوڑھی ایک کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، سوچتی ہے وہ بہو جو اس سے پوچھتی تھی شوہر کے ہونے پر، کہتی تھی امی آج شام کو کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ بیٹا بھی پوچھتا تھا امی آج شام کو میں تمہارے لیے کیا بنوا دوں؟ آج وہی بوڑھی شوہر کا سایہ سر پہ نہیں ہے تو کوئی اس سے ایک بات پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ آج کیا کھاؤ گی۔ سوچتی رہتی ہے کاش میرا بیٹا مجھ سے بات کر لیتا، کاش میری بہو مجھ سے بات کر لیتی۔ شوہر والیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہارے شوہر ہیں تو ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ حضرت آمنہ کہتی ہے مولا میرے شکم میں عبداللہ کی امانت پروان چڑھ رہی ہے اور تو نے میرا سہارا پہلے ہی اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن عبد المطلب جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے بولے عبد المطلب ایک بات کہیں اگر جان کی امان ہو۔ کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ تمہاری بہو آمنہ تمہارے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ تمہاری بہو آمنہ عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی؟ کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ہمارے گھر کی عورتوں نے یہ بات کہی ہے، آپ ذرا پوچھو آمنہ سے کہ آمنہ کیوں عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ حضرات عبد المطلب آئے، آ کر کے اپنی بی بی فاطمہ سے کہتے ہیں، عبد المطلب کی بی بی کا نام فاطمہ تھا، کہا فاطمہ ایک بات بتاؤ، آج تک مکے میں کسی کی ہمت نہیں جو عبد المطلب سے ایک بات کر لے، آج آمنہ کی وجہ سے مجھے سننا پڑ گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آمنہ سے پوچھو کیا وہ عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ کہا فاطمہ نے میں نہیں پوچھ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے یہی پوچھنا چاہا تھا، آمنہ کی پیشانی سے ایک نور نکلا، میری پیشانی پہ لگا، میں زمین پہ گر گئی، میں بے ہوش ہو گئی، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ۔ بولی میرے اندر ہمت نہیں۔ آئے عبد المطلب، کہا آمنہ ایک بات کہو، ایک بات کہوں بتاؤ گی؟ کہا ہاں ابا کہو کیا بات ہے؟ کہا ایک بات بتاؤ آمنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات دیکھیے ہمارے خصوصی خطیب خطیب اہل سنت حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے، بس کچھ دیر کی گفتگو اور آپ سماعت کر لیں، میں نور مصطفیٰ کی برکت آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ خصوصی خطاب آپ کو حضرت کا سماعت کرنا ہے، ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کی ذرا تاریخ سن لو، اپنے نبی کی ہسٹری
आखिरी सुन लो। आगे के वाकयात तो आप बहुत सुनते रहते होंगे, लेकिन नबी की तशरीफ लाने से पहले के जरा वाकयात सुन लो। मैं आज आपको बड़ा तारीख की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। दुआ है परवरदिगार मेरे बयान करने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, ताकि कयामत के दिन ये मेरे लिए निजात का और बख्शिश का जरिया बन जाए। हजरत आमिना से जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ बेटी क्या तुम अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, क्या तुम अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती? तब हजरत आमिना ने आंखों में आंसू भर के कहा, अब्बा कैसी बात करते हो, जब से अब्दुल्ला का विसाल हुआ है ना तो दिन को चैन है ना रात को आराम है, हमेशा अब्दुल्ला की याद आती रहती है। कहा बेटी तो ये तुम्हारे जिस्म से खुशबू क्यों आती है? कहा अब्बा आप सिर्फ खुशबू की बात करते हैं। कहा अब्बा सुनो, पहले मैं जब कुएं पे पानी लेने जाती थी तो मुझे डोल डाल करके रस्सी से खींच के पानी निकालना पड़ता था। आज जब मैं कुएं पे जाती हूँ तो पानी ऊपर आ जाता है और मैं पानी को भर लेती हूँ। कहा अब्बा यही कमाल की बात नहीं, बल्कि मक्के की सारी औरतें कहती है ए आमना अभी घर मत जाना। कहा क्यों? कहा जब तुम घर चली जाती हो तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है, हमें डोल डाल करके भरना पड़ता है। आमिना जब तक तुम खड़ी रहती हो पानी ऊपर रहता है। और यही कमाल की बात नहीं, अब्बा जब मैं पहाड़ों से गुजरती हूँ तो पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, जो दरख्तों से गुजरती हूँ दरख्त ऊपर होते हैं नीचे आ जाते हैं और कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैके उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल की माँ तेरे ऊपर सलाम हो। कहा यही कमाल नहीं? कहा अब्बा यही कमाल नहीं। अब्बा जब मैं गलियों से गुजरती हूँ सारी गलियां खुशबू से महकने लगती हैं। बरेली का इमाम पुकार के कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। हजरत आमिना कहती है अब्बा यही कमाल की बात नहीं, बल्कि मैं जिस गली से गुजरती हूँ गली खुशबू से महक जाती है, पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, दरख्तों से सलाम की आवाज आती है। मेरा इमाम पुकार के कहता है अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तर जुबान दरख्त को हजर की है। नबी की वालिदा जिस गली से गुजरे गली खुशी में खुशबू से महक जाए, जिस तरफ से गुजरे जानवर दरख्त जंगल के निकल करके हजरत आमिना का दीदार किया करते थे। आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है। सारी दुनिया जानती थी कि वो आएंगे, सारी कायनात जानती थी वो आएंगे। जिनके सदके में जमीन बनी वो पैगंबर आएगा, जिसके सदके में आसमान बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में चांद बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में सूरज बना वो रसूल आएगा। अरे चांद ने जब सूरज से पूछा ए सूरज ये तो बता जिसके सदके में हम पैदा किए गए हैं वो पैगंबर कब आएगा, वो रसूल कब आएगा? तो सूरज ने कहा अरे चांद तू कब से इंतजार कर रहा है, मैं तो समझ रहा था उस पैगंबर का इंतजार सिर्फ मैं कर रहा हूं, अरे तू कब से कर रहा है? तो चांद ने कहा अरे मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कब वो पैगंबर मक्के में तशरीफ लाए और मक्के वालों के कहने पर कब वो मुझे उंगली का इशारा करे और मैं दो हिस्सों में बट जाऊं, दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और कयामत में रब की बारगाह में कह दूं मौला मेरे कटे हुए वजूद को देख, मेरे वजूद को मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगलियों ने देखा है, नबी की अंगुष्ठ मुबारक ने देखा है। तब चांद ने कहा ऐ सूरज तू उनका इंतजार कब से कर रहा है? तो सूरज ने कहा अरे जब से मैं तो उस पैगंबर का इंतजार कर रहा हूं, इसलिए कि मकाम सहबा में अली शेर खुदा की जब असर की नमाज कज़ा हो जाए तो वो पैगंबर उंगली का इशारा कर दे तो मैं डूब चुका हूं तो वापस निकल करके आ जाऊं, ताकि कयामत में कह दूं कि मौला मेरे वजूद को देख, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अंगुष्ठ मुबारक ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह।
सारी कायनात इंतजार कर रही है। ये आसमान उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये जमीन का फर्श उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये सूरज की लाइट उसी महबूब की आमद के लिए लगाई गई, ये चांद को पैदा किया गया तो उसी महबूब के इस्तिकबाल के लिए सारी कायनात इंतजार कर रही है। वो कब आएंगे? सारी दुनिया कह रही है वो कब आएंगे, वो कब आएंगे? सब मुंतजिर है उस महबूब की आमद के। सूरज मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है, सितारे मुंतजिर हैं, आबशार मुंतजिर है, जमीन मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है। सारी दुनिया उस महबूब की आमद का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, उस महबूब की आमद का वक्त होने वाला है। वो महबूब अब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत गिरहनी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक में वो महबूब पर, उस महबूब का नूर परवान चल रहा है। वक्त करीब आता जा रहा है, घड़ी करीब आती जा रही है, लम्हे करीब आते जा रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था। मैंने क्या देखा कि बुलंद कामत औरतें अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह मेरे घर में आई और आकर के कहा आमिना परेशान मत हो। कहा परेशान मत हो। मुझे एक प्याला दिया गया, उसमें शरबत था, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। कहा आमिना इसे पी लो। हजरत आमिना कहती हैं मैंने जब उसे पिया तो पीने के बाद मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। हजरत गिरामी हजरत आमिना कहती हैं, हजरत आमिना का बयान है कि मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आंगन में गिर जाएंगे। हजरत आमिना कहती हैं एक पर्दा आया गैब से, कहा आमिना इस पर्दे को मजबूती से पकड़ लो। हजरत आमिना ने जब उस पर्दे को पकड़ा, कहती हैं कि उसकी रोशनी में एक ऐसा नूर निकला कि मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं फरमाते हैं कि ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह क्या वाह चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। हजरत महबूब की आमद होने वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजरा, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। आप जरा सोचो तो सही, अगर एक महीना इमाम अपनी कौम को मसले ना बताए, एक महीना इमाम अगर अपनी कौम के सामने शरीयत की बातें ना बताए तो कौम कहां से कहां पहुंच जाती है। जरा सोचो तो सही, लोग अपनी तरफ से मसले गढ़ करके लोग आपस में ही बातें कर लेते हैं, इस मसले का जवाब ये है, ये मसला ये है, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जरा सोचो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का, कौन सी हालत पे पहुंच गए थे मक्के वाले। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो उसको जिंदा दफन कर दिया करता था, अगर किसी का और शौहर मर जाता तो उस बूढ़ी औरत को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता, 40 दिन तक उसे कमरे में बंद रखा जाता, पेशाब पाखाने तक के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसी के अंदर बूढ़ी रहती। 40 दिन के बाद अगर वो जिंदा निकल आती, सर के बाल मूंड करके, चेहरे पे कालक लगा करके, गधे की नंगी पीठ पे बिठा के पूरे कस्बे शहर में घुमाया जाता था। ये वो मनहूस औरत है, मनहूसा औरत है जिसकी वजह से उसका शौहर मर गया। अब बेटों की विरासत में माँ आ जाती थी, बेटे चाहते तो उसे अपने पास में रख लेते या चाहते तो बाजार में जाकर के बेच आते थे, और औरतों को, बीवियों को तो पैर की जूती समझा जा रहा था। बहनों का हाल ऐसा बन चुका था कि भाई खुद अपने हाथ से अपनी बहन का मर्डर कर दिया करता था, कत्ल कर दिया करता था, ताकि मैं किसी का बहनोई, मैं किसी का साला ना कहलाऊं और कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। इस हाल में मक्के वाले पहुंच चुके थे। महबूब की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, नबी की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा गाड़ा जा रहा है। जरा सोचो तो सही, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है, उन्होंने आका की बारगाह में आके कहा था आका क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा। आका ने फरमाया तेरे गुनाह क्या हैं। कहा आका मैंने बहुत गुनाह किए हैं। फरमाया गुनाह तो बता, मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह माफ कर देता है। कहा तुम्हारा गुनाह क्या है। तब दहिया कल्बी बोले आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंदर 70 कबीले 70 घर आते थे और मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया है, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया है।
इतना सुनना था। मेरे आका की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका दहिया कल्बी से कह दीजिए कि वो इस्लाम कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। मेरे आका ने जब ये खुशखबरी सुनाई तो दहिया कल्बी और रोने लगे। फरमाया रो क्यों रहे हो? कहा आका एक गुनाह मुझसे बहुत बड़ा हुआ है। फरमाया क्या? कहा मेरी बीवी पेट से थी, मेरी बीवी हामिला थी और मैं तिजारत के लिए जा रहा था। अपनी बीवी से कह के गया अगर तेरे शिकम से लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, अगर लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। दहिया कल्बी कहते ये कह के मैं चला गया। 7 साल के बाद में आया। आने के बाद में आका मैंने अपना दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्ची ने दरवाजा खोला। जब बच्ची ने दरवाजा खोला मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। और उस बच्ची ने पूछा आप कौन है? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची छोटी सी मेरे पैरों पे लिपट गई, बोली अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से अपनी माँ से पूछती थी एक अब्बा कब आएंगे, मैं आपके बारे में सुबह शाम पूछती थी अम्मी अब्बा कब आएंगे। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और आका से अर्ज करते जा रहे हैं आका मेरी बच्ची ने मेरे पैरों को पकड़ के कहा अब्बा आपने आते आते बहुत देर कर दी। मैंने अपनी बीवी से कहा बीवी ये किसकी बेटी है? कहा ये आपकी बेटी है। कहा मैंने तुझसे क्या कहा था कि लड़का पैदा हो तो उसे जिंदा रखना, लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और लड़की पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना, उसका गला दबा करके मार देना। दहिया कल्बी ने जब इतना कहा तो बीबी ने कहा मेरे शौहर मैंने जब बच्ची को जन्म दिया था मुझे तुम्हारी नसीहत याद थी, मैं इसका गला दबाना चाहती थी, तब मेरे ज़मीर ने आवाज दी अगर तूने इस बच्ची को मार दिया तो कयामत तक के लिए माँ की ममता से भरोसा उठ जाएगा, कयामत तक के लिए कोई माँ के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। दहिया कल्बी की बीबी ने कहा इसलिए मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। अरे नादान ये बेटी है, देख इसका चेहरा देख कैसा फूल सा खिलता हुआ चेहरा है। दहिया कल्बी कहते आका जमाना जाहिलियत था, मेरे अंदर जिहालत उठ कर आई। आका मैंने अपनी बच्ची को गोद में लिया, बीबी को धक्का दिया, बीबी दूर जाकर के गिरी, मैं कुदाल लेकर के चलने लगा। जब मैं चल रहा था तो रास्ते में मेरी बेटी ने मुझसे पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने कहा एक दावत में जा रहा हूँ। बोले जल्दबाजी में आका मैं चप्पल नहीं पहन सका, मेरे आका मेरे पैरों में कांटे चुभने लगे, जब मेरे पैरों से खून निकला तो मेरी बेटी ने खून देख लिया, बोली बाबा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, बाप का खून बहा करके हमें दावत नहीं खानी है, अब्बा घर पे वापस चलो। दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा, मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब मैं गड्ढा खोद रहा था मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी उठा करके बाहर डाल रही थी, उसे नहीं पता कि ये गड्ढा उसी के लिए खोदा जा रहा है, उसे नहीं मालूम था कि आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है, बेटियों का ये हाल मक्के में हो चुका था। जरा सोचो तो सही। दहिया कल्बी कहते आका मैंने अपनी बच्ची को गड्ढे में खड़ा कर दिया, मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछा, मेरे आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी, उसके पिंडलियों तक मिट्टी पहुंची। मेरी बेटी ने हाथ ऊपर उठा के कहा अब्बा पैर भारी हो रहे, मेरे अब्बा मेरे पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, मुझे अपनी आगोश में ले लो। मेरे अब्बा मैं अब्बा कह के किसको पुकारूंगी? दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। दहिया कल्बी कहते आका मैंने मिट्टी डालना शुरू की, जब मेरी बच्ची के गले तक मिट्टी पहुंची तब मेरी बेटी समझ गई कि उसका बाप अब जल्लाद बन चुका है, अब उसका बाप उसको आगोश में नहीं लेगा बल्कि उसे जिंदा दफन करने के लिए आया है। पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, दहिया कल्बी कहते हैं ऐ मेरे आका मेरी बच्ची के जब हल्क की जब आवाज दबने लगी तब उसने आसमान की तरफ देख के कहा मौला कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा? ऐ मेरे परवरदिगार जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। इधर तुम जिस हिंदुस्तान में रहते हो इसी गंगा नदी के किनारे पर ऐसा दौर बन चुका था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उस जवान लड़की को भी उसी चिता पे जला दिया जाता था, उसका बाप भी निगाहों के सामने खड़ा होता,
उस बेटी का चचा भी निगाहों के सामने होता, उस बेटी का भाई भी उसका निगाहों के सामने खड़ा होता। वो गरीब बेचारी कहती मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जलाया जा रहा है, मेरा शौहर चला गया, अरे मेरे बाप मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है। तो बाप कहता है बेटी यही रस्मो रिवाज है, यही रीत चली आ रही है। बेटी मैं सोसाइटी से लड़ाई नहीं ले सकता, मैं अपने खानदान वालों से जंग नहीं कर सकता, बेटी तुझे भी इस चिता पे जलना पड़ेगा। इधर चिताओं पे जलने वाली बेवाएं आसमान के पर्दों की तरफ, पर्दों पर उनकी आवाजें पहुंची। उधर मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रो रो करके कह रही थी मौला कब तक जिंदगियां तबाह होती रहेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्हें आज मिला है। अरे ये नारा 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। आज तुमने हजारों माओं को चिताओं पे जला दिया, हजारों माओं की चिताएं जला दी, तब तुम्हें आज समझ में आया कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जरा देखो चिताओं पे जलने वाली बेबाएं आसमान की तरफ निगाह उठा के कह रही थी मौला तेरा पैगंबर कब आएगा जो बेबाओं को बचाएगा। मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी मौला कब तक बच्चियां जिंदा दफन होती रहेंगी, कब तक बच्चियों को जिंदा गाड़ा जाता रहेगा, कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा, कब तक बच्चियों का गला घोटा जाता रहेगा। इधर बेवाएं रो करके कह रही थी मौला कब तक बेवाओं को चिताओं पे जलाया जाता रहेगा। तो ऐ पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खानाए काबा के सामने से, अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद में जब नबी की आमद होती है तो आसमान में एक आवाज बुलंद होती है ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम्हारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। वाह कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सर घराना नूर, तेरा सर घराना नूर। मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए गरीब कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए गरीब मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए जो परेशान हाल थे वो मुस्कुराने लगे। हमारी परेशानी को दूर करने वाला पैगंबर आ गया। बेटियां कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया, बेवाएं कह रही थी हमें जलने से बचाने वाला पैगंबर आ गया। नबी की आमद हुई मक्के की सरजमीन पर, मुस्तफा तशरीफ लाए मक्के की सरजमीन पर। मेरे नबी की आमद पर हर एक खुशियां मना रहा है, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं। जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछो, 3 झंडे लेके आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा, एक हजरत आमिना के मकान की छत पे गाड़ा, एक रिवायत है कि एक काबे की छत पे गाड़ा, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा, और दुनिया को पैगाम दे दिया वो तशरीफ लाया है जिसकी सारी कायनात पर हुकूमत होगी, वो आ गया है जिसकी सारी कायनात पर हुक्मरानी होगी। जिब्रील झंडे गाड़ के खुशी का इजहार कर रहे हैं, उधर आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, नूह मुबारकबाद दे रहे हैं, इब्राहिम मुबारकबाद दे रहे हैं, इस्माइल मुबारकबाद दे रहे हैं। अरे जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं। आसमान कह रहा है वो आ गए, जमीन कह रही है वो आ गए, चांद सूरज कह रहा है वो आ गए, सितारे कह रहे हैं वो आ गए।
सब खुशी मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। ऐसे आलम में जब इब्लीस को ढूंढा जाता है, जब शैतान को तलाश किया जाता है, तो मक्के के बाहर एक पहाड़ी है जिसे बूक कुबैस कहते हैं, पहाड़ी पर अपना सर मार रहा था। शैतानों ने पूछा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब इब्लीस ने कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। इधर नबी खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं, जिब्राइल खुशियां मना रहे हैं। उधर शैतान के पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐ पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं, नबी की आमद पर जो घरों को सजाते हैं, नबी की आमद पर जो अपने घरों में झंडे लगाते हैं, मुस्तफा की आमद पर जो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, नबियों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेट में दर्द होता है, वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। मेरा इमाम कयामत तक इन जालिमों को ये पैगाम दे रहा है, ए मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ने वालों, ए मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को ये पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप हजरात कोई परेशानी जाएंगे, आप हजरात कोई परेशानी जाएंगे, लग रहा है भाई को देख के, हजरात बहुत अच्छा बयान, नबी माशाअल्लाह, क्या बात है। तो कोई ज्यादा नहीं हुआ है, नबी की आमद का जिक्र हो रहा है। नबी के जलसे में जब बैठा करो तो मोहब्बत के साथ बैठा करो, और ये सोच के मत आया करो कि हम फला खतीब को सुनने जा रहे हैं या फला शायर को सुनने जा रहे हैं। ये सोच के आया करो कि जलसा किस शख्सियत के नाम से है। अरे आज के जलसे को उस नबी से निस्बत है जिसके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया है। आज के जलसे को निस्बत उस पैगंबर से है जिसके सदक़े में तुम्हारा वजूद बना है। आज के जलसे को निस्बत उस नबी से है जिसके सदक़े में तुम्हें बोलने के लिए जुबान मिली। आज के जलसे को निस्बत उस नबी से है जिसके सदक़े में तुम्हें खाने को खाना मिला। उसी नबी के जिक्र की महफिल में बैठ करके नबी की मोहब्बत में बैठा करो, खतीब और शायर की मोहब्बत में मत बैठा करो। आज मैं हूं, कल मेरी जगह कोई और यहाँ पर बोलने के लिए आएगा। उस नबी की मोहब्बत में बैठोगे तो कयामत का दिन होगा। मेरी मोहब्बत में मेरा जिक्र सुनने के लिए बैठे थे, परवरदिगार मेरी मोहब्बत की वजह से इन्हें जन्नत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, गौस का दामन, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, वाह क्या बात। लेकिन आज इंसान की ज़हनियत बदल गई, आज इंसान की सोच बदल गई। बस उसको हंसी मजाक की बातें जितनी ज्यादा सुनाओगे उतनी ही ज्यादा वो खुश होगा और उसको वही चीज ज्यादा पसंद आएगी। तुम नहीं जानते कि हमारे नबी ने क्या पैगाम दिया, तुम नहीं जानते हमारे नबी ने क्या दर्स दिया, तुम नहीं जानते कि हमारे नबी ने क्या सबक दिया। अब भी सुधर जाओ, अब भी वक्त है। दुनिया तुम्हें मिटाने पे तुली है, सारे सब तरफ से नजरें मुसलमानों पे टिकी हुई हैं और तुम आज आपस में बटे हुए हो। बस तुमको गलियों में हंसी मजाक करने के लिए मिल जाए। तुम नहीं जानते सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर टिकी हुई हैं। आज अगर तुम एक नहीं हुए और अपने नबी का दामन तुमने सच्चाई के साथ नहीं पकड़ा तो वो दिन दूर नहीं है। न संभलोगे तो मिट जाओगे सुन्नी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए नबी की मोहब्बत में बैठो, नबी के इश्क में बैठो, नबी के प्यार में बैठो। मदीने वाले मुस्तफा की आमद मक्के की सरजमीन पर हुई। नबी मक्के में तशरीफ लाए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, बच्चियां मुस्कुराने लगी, ज़ईफ मुस्कुराने लगे, कमजोर मुस्कुराने लगे, गुलाम मुस्कुराने लगे। आ गया वो पैगंबर, आ गया जो हमें गुलामी से निजात देगा, आ गया वो पैगंबर जो हमारी बच्चियों को बचाएगा। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका माँ
के शिकम में थे। बाप का साया सर से उठ गया। जब 6 साल की उम्र हुई, हजरत आमिना ने कहा, बेटा अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, हमें अब्दुल्ला की बहुत याद आ रही है, हम जरा उनके पास जाना चाहते हैं। मेरे आका अपने दादा के पास तशरीफ लाए और अपने दादा से कहा, दादा हम यसरिब जाना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। कहा हमारी अम्मी भी जाएंगी। कहा ठीक है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बांदी उम्मे ऐमन को साथ में कर दिया। यही बात बयान करके तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। बांदी उम्मे ऐमन है, मेरे आका है और हजरत आमिना है, 3 लोग जा रहे हैं। जब मकाम अबवा आता है, मक्के और मदीने के बीच में जगह है, जब मकाम अबवा में पहुंचने के बाद में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सबसे आना है, वो घड़ी आई जो सबसे आनी है, वो टाइम आया जो सबसे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, हजरत आमिना जब लेटी हुई थी तो मेरे आका ने अपनी माँ के सर को अपने ज़ानू पर रख लिया और मेरे आका अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? आका हमें इजाजत दे दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें, हम आपकी माँ का सर दबा दें। तो मेरे नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले। मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, शहजादा रो रहा है। हजरत आमिना ने अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पर फेर के कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो बच्चे को कितने लोग ढारस देने की बात करते हैं, कितने लोग होते हैं जो बच्चे को सहारा देने की बात करते हैं। अगर किसी का बाप इंतकाल कर जाए, चचा कहता है मत रो मेरे भतीजे, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ कहता है मत रो मेरे भतीजे, तेरा ताऊ मौजूद है। दादा कहता है तेरा दादा अभी मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है, खानदान वाले अलग सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर, कुर्बान जाओ दोनों आलम के मालिक मुख्तार पर। बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब माँ के शिकम में थे, और जब 6 साल के हुए तो माँ भी रुखसत होने वाली है। कोई नहीं है जो सहारा देने की बात करे, कोई नहीं है जो ये कहे कि मोहम्मद हम तेरा साथ देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका की आंखों से आंसू निकले। हजरत आमिना ने मेरे नबी को अपने सामने बिठाया और कहा, बेटे तू रो मत, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। तू आंसू मत बहा, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पर इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका को हजरत आमिना ने सामने बिठाया और बिठाने के बाद में कहा, बेटे मोहम्मद हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर बाकी को फना हो जाना है। मेरे लाल व जिक्रा बाप, मेरा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। वह बलद तोहरा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा। मेरे लाल तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे लाल तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारी दुनिया में होगा। मेरे आका की वालिदा ने जब इतना कहा कि बेटे मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे सहाबा, मेरे आका के सहाबा ने एक मकाम पर देखा, आका मस्जिद नबवी में बैठ करके आंसू बहा रहे थे। सहाबा ने पूछा, आका आज आप रो क्यों रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, आज मुझे मेरी माँ के वो आखिरी जुमले याद आ रहे हैं
جو میری ماں نے مجھ سے آخری وقت میں کہے تھے۔ میرے آقا کے صحابہ نے عرض کیا آقا کیا کہے تھے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری ماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر کے کہا تھا کہ میرے بیٹے میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، میرا نام کبھی نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ مجھے وہ ماں کے جملے یاد آ رہے ہیں۔ میرے نبی سے جب حضرت آمنہ نے یہ جملے کہے اس کے بعد حضرت آمنہ کی آواز خاموش ہو گئی۔ میرے نبی اپنی امی کے کانوں کے قریب اپنے مبارک لبوں کو لے جا کے کہتے ہیں امی اور بولو نا، امی اور بولو نا، امی اور کہو نا۔ حضرات 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب مدارج النبوت میں کہ اگر آقا 1 مرتبہ اور کہہ دیتے تو اسرائیل علیہ السلام کو میرے نبی کی والدہ کی روح ان کے جسم میں واپس کرنا پڑ جاتی، اس لیے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا امی اور بولو نا۔ حضرت آمنہ نے وصال سے پہلے میرے نبی کو اپنی گود میں اٹھا کر کے شانی کو بوسہ دے کر کے ام ایمن کو میرے آقا کو اٹھا کر کے دیتے ہوئے کہا تھا ام ایمن آج سے میرا محمد تیرے حوالے ہے، اسے سردار مکہ کے ساتھ حفاظت سے پہنچا دینا، اسے سردار مکہ کو دے دینا، میرا محمد اب تیرے حوالے ہے، میرے محمد کو دیواروں سے ہاتھ لگا کر رونے مت دینا۔ ام ایمن کہتی ہے جب میں محمد کو لے کر کے چلی انہی پتھریلی وادیوں میں حضرت آمنہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ ام ایمن کہتی ہیں میں جب لے کر کے پہاڑی پر چڑھی تو آقا میرے پاس سے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور میرے آقا کو اتنا روتے ہوئے دیکھا۔ ام ایمن نے خود بیان کرتی ہے کہ میں نے آج تک کسی کو اتنا پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کتنی محبت کرتے ہیں میرے نبی اپنی ماں سے، کتنا پیار کرتے ہیں میرے نبی اپنی ماں سے۔ میرے بھائیو اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، یہ بوڑھے ماں باپ تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ جس دن یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو کوئی سہارا دینے کی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ ماں باپ کا سایہ کیا ہے یہ ان بچوں سے پوچھو جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، کیسے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کیسے اپنی زندگی کاٹتے ہیں۔ ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو۔ نبی فرماتے ہیں تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیسے؟ فرمایا اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو اللہ جنت دے گا، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کو بڑھاپے میں ستایا تو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ میرے آقا نے ایک مقام پھر ارشاد فرمایا ماں باپ کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اس لیے یہ ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کی عزت کر لو، کیونکہ ماں باپ بچپن سے لے کر کے جوانی تک پوری زندگی تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں اچھا کھلاتے اچھا پہناتے ہیں، اور جب وہی ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتے، جب انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت پڑتی ہے تو تم اپنا بستر الگ لے کر کے چلے جاتے ہو۔ کیا جواب دو گے قیامت میں اپنے رب کو؟ کون سا منہ لے کے جاؤ گے محبوب تاور کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے شافع محشر کے سامنے؟ اس لیے اے میرے بھائیو ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کی عزت کر لو۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے جتنا محمد کو پھوٹ پھوٹ کے اپنی ماں کی قبر پہ روتے ہوئے دیکھا تھا اتنا میں نے آج تک کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ میرے نبی کی اپنی ماں سے محبت تھی، یہ میرے نبی کا اپنی ماں سے پیار تھا۔ اگر ماں 100 بد دعائیں کرتی ہے تو اللہ 99 رد کر دیتا ہے، 1 قبول کرتا ہے۔ اللہ 99 قبول کر لیتا ہے اور 1 رد کر دیتا ہے، اور اگر ماں 100 دعائیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ 99 قبول کر لیتا ہے اور 1 رد کر دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اپنے اولاد کو سچے دل سے بد دعا نہیں دیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، پہلی محبت ہے دنیا میں ماں باپ کی جو بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اس لیے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ مشکل سے چند بچوں کو پالا تھا جتن سے، بڑھاپے میں محنت کا صلہ ان سے نہ پائی، ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہیں آئی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو۔ میرے آقا اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کا سبق دے رہے ہیں۔
کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس سے آگے کا بیان میں آپ کو نبی کی سیرت کا سناؤں گا انشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا، در سنانے والا بنا کر کے بھیجا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا۔ آپ اپنے رب کے حکم سے بلاتے ہیں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے، ہا نے کہا حامی و ناصر آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا مالک و مختار آ رہا ہے، زال نے کہا ذی علم و ذی حشم آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زحمتوں کو دور کرنے والا آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، سعاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیفوں کی مدد کرنے والا آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، مطہر آ رہا ہے، اور زا نے کہا ظاہر و باطن آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کی مدد کرنے والا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی و رہبر آ رہا ہے، اور یا نے کہا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے، رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے۔